Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students and viewers. This is week number 8 of our course Cloud Computing. If you remember, in the last lecture we talked about characteristic of big data. More specifically, we talked about the V's of big data. For example, the volume. We talked about variety, we talked about velocity, veracity, valence, and lastly the last V, which is called the value. These were the basic characteristic of big data. We see examples of all these V's in details and how they are used in today cloud. In today's lecture, we are going to continue the same concepts, but in this lecture we are going to focus on some of the cloud service providers. The first one, or the leading cloud service provider, is the AWS from Amazon, that is called Amazon Web Services, or AWS in short. AWS is a cloud service from Amazon which provides services in the form of building blocks, and these building blocks can be used to create and deploy any type of application in the cloud. What does it mean? क्लाउड सर्विसेज, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है टू द यूज़र, टू द कस्टमर. द लीडिंग one is from Amazon and that is called AWS. Amazon जो है ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सम बिल्डिंग ब्लॉक्स. इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं in order to create and deploy different types of applications in the cloud. So what does it mean? AWS covers a broad range and increasing spectrum of cloud services. So आप कह सकते हैं कि जो Amazon है, it can deliver cloud-based computing services and resources like any other cloud service provider, for example from Google or from Microsoft, etc. And it is widely believed कि जो Amazon है, जिन्होंने start किया था इस cloud revolution को, that is the leader in web services providers. यानी इस लिस्ट में जो जो कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें जो लीड कर रहा है दैट इज़ द Amazon. So like other vendors of cloud computing services and resources, Amazon आपको कुछ benefits provide करेगा if you are using their cloud services, और वो benefits हैं like flexibility and scalability, elasticity, security, privacy and cost effective solutions. तो अगर कोई Amazon की वेब सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, so the user will get all these benefits from the Amazon. जो सबसे बड़ा एज है AWS को यूज़ करने में जो आपको मिलेगा, दैट इज़ कि इनका जो एक्सपीरियंस लेवल है और इनका जो सक्सेस है, the proven success in the area of cloud computing and web services provision, because they are the pioneers in providing the cloud services. So the edge is कि इनका level of experience वो बाकियों से ज़्यादा है और इनका जो सक्सेस रेट है वो भी बाकियों से ज़्यादा है. सो ये एज आपको मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग टू अवेल द सर्विसेज ऑफ AWS. इन्होंने स्टार्ट लिया था अराउंड अबाउट इन 2006 and now they are scaled to a global level, right? So you can say कि many इनके जो कस्टमर है they are all around the world. Many companies, organizations are relying on AWS services for using the cloud. So Amazon is basically a large, well-funded entity and they have a proven track record. जिस तरह मैंने कहा कि they are the pioneer, उनका experience level बाकियों से बहुत ज़्यादा है.
So they have the resources to rapidly accommodate and scale user requirements, और ये जो है they वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू द एवर चेंजिंग कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो दे आर वेरी डायनामिक, और ये खुद को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अमेज़ॉन जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व भी कर रहा है, और इसकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पे है। अभी हम देखेंगे उनके रीजनल सेंटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं। सो यू कैन से कि दे आर इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इनके जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, डेटाबेसेस से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, या एप्लीकेशन और डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट से रिलेटेड, इनकी जो सर्विसेज हैं दे आर वेरी ब्रॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कंप्यूटिंग की, तो कंप्यूटिंग में हम देखेंगे कि इनके जो फेमस सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड विच इज़ कॉल्ड अमेज़ॉन EC2। इसके अलावा लैम्बडा एक सर्विस है विच इज़ रिलेटेड विद कंप्यूटिंग। इसके अलावा इलास्टिक लोड बैलेंसिंग एक सर्विस है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड विद कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अलावा स्टोरेज पे अगर हम बात करें, so the services provided by Amazon related with storage they are like the famous one is S3, which stand for simple storage service, and also beside from Amazon S3 we have elastic block store service as well। ये दोनों जो है they are famous and they are related with the content delivery and storage। यानी अगर आपको क्लाउड पे Amazon की कोई स्टोरेज की सर्विसेज चाहिए तो आप इनमें से कोई एक अवेल कर सकते हैं। बाकी भी हैं बट दे आर द फेमस। डेटाबेस डोमेन में दे आर आल्सो इन, एंड डेटाबेस डोमेन इज़ यूज फॉर डेटाबेस रिलेटेड वर्कलोड्स, आपको पता होगा। सो जो सर्विसेज डेटाबेस से रिलेटेड अमेज़ॉन ऑफ़र कर रहा है, अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज की, सो RDS इज़ फेमस। और अगर हम बात करें नॉन रिलेशनल डेटाबेस की विच इज़ कॉल्ड NoSQL डेटाबेस nowadays, so DynamoDB is a very famous service, database related service provided by Amazon। इसके अलावा कंटेंट्स और नेटवर्किंग डिलीवरी से रिलेटेड सर्विसेज की अगर हम बात करें, सो अमेज़ॉन इज़ देयर एज वेल। उनके अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेटअप हैं, उनका अपना एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड रूट 53। इसके अलावा क्लाउड फ्रंट भी है विच इज़ समथिंग रिलेटेड विद द नेटवर्किंग डिलीवरी, एंड आल्सो वी हैव अमेज़ॉन डायरेक्ट कनेक्ट एज वेल। और अगर हम बात करें बिग डेटा एनालिटिक्स की, सो द सर्विस विच इज़ वेरी फेमस इज़ कॉल्ड अमेज़ॉन इलास्टिक मैप्रिड्यूस। मैप्रिड्यूस पे आगे जाके हम बात करेंगे भी। सो देयर इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंडेक्सिंग एंड सर्च फंक्शनैलिटीज़, ये सारे ये चीज़ें जो हैं ये आपको मैप्रिड्यूस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड सर्च हैं, ईमेल्स की सर्विसेज हैं, नोटिफिकेशन की सर्विसेज हैं। इसके अलावा ट्रांसकोडर वगैरह सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, एंड द लिस्ट गोज़ एंड गोज़। फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट की भी सर्विसेज है, या मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ये सर्विसेज ऑफर करता है टू इट्स यूज़र। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज़ अ फेमस और वेल नोन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द अमेज़ॉन रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन एक सर्विस है। इसके अलावा क्लाउड HSM है, की मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, एंड सो ऑन। सो द लिस्ट नॉट एंड हियर this is a large list of the services which is basically provided by the Amazon। So let me conclude, it's in every area। यानी अगर आपको स्टोरेज से रिलेटेड सर्विस चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सर्विस, एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, स्टोरेज, कंप्यूटिंग रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, जो भी सर्विस आपको चाहिए अमेज़ॉन आपको वो प्रोवाइड कर सकता है एट रीजनेबल कॉस्ट ऑब्वियसली। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमारे पास और भी प्रोवाइडर्स हैं, सो व्हाई वी विल चूज Amazon Web Services or why we will choose AWS, right? So if you have if you know about the other services, so obviously the pioneer one is the AWS, okay? So इनके जो products हैं और solution हैं offered by them, they are huge as compared to the other।
यानी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज ग्लोबल स्केल के यूज़र्स के लिए इनके पास जो है वो पैकेजेस अवेलेबल हैं. It is good enough for small companies as well as for large organizations or enterprises, so they have solutions available. तो इनके जो प्राइसिंग जो मॉडल है, जिस तरह बाकियों के प्राइसिंग मॉडल है जिसको हम कहते हैं पेस पर यूज़ और पे एस यू गो मॉडल, सो AWS पे एस यू गो मॉडल को फॉलो करता है. यानी यू हैव टू पे फॉर द रिसोर्सेज. जितनी रिसोर्सेज आपको चाहिए you will have to pay for them. Obviously you have to pay for computing hours or you have to pay for storage that you would require for your organization setup. इसके अलावा इनके कुछ फ्री टीयर मॉडल भी अवेलेबल है, स्टूडेंट के लिए भी है. आई हैव अप्लाइड फॉर एन अकाउंट on Amazon Web Services and that is for faculty member, but it will take a couple of days in order to be verified from the university and other stuff. इसके अलावा स्टूडेंट के लिए भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इनके फ्री टीयर मॉडल्स अवेलेबल है. उस पर भी हम लेटर ऑन बात भी करेंगे कि फॉर यूज़र हु आर लेस नॉलेजेबल ऑफ AWS और उनको डाउट है कि वो जंप करें या ना करें, तो वो फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करते हैं. इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अच्छी है, सो दैट इज़ वाई हम AWS को लोग जो है वो प्रेफर करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी सर्विसेज में, स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट है, और इसके अलावा अपने कस्टमर के बारे में ये नॉलेजेबल भी है. सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस we prefer to select AWS services as compared to the other competitors available in the market. So, Amazon Web Services are probably the largest provider. अगर आपको याद हो, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, एक्चुअली एवरीथिंग इज़ अ सर्विस, लेकिन उनमें जो 3 कैटेगरीज थी, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड द लास्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. सो जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, दे आर फोकसिंग मोस्टली ऑन द IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप इसको कह सकते हैं. What does it mean? इसका मतलब है अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म विच इज़ द लेयर अबव इट वो भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड आल्सो द एप्लीकेशन विच इज़ द टॉप मोस्ट वो भी प्रोवाइड कर रहा है. सो इनके पास सोल्यूशन है फ्रॉम एप्लीकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर. They can provide you actually services related with the infrastructure. Okay, actually they provide a whole spectrum of infrastructure as a service, right? फ्रॉम स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि स्टोरेज से रिलेटेड जो इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा कॉमन है या बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको हम कहते हैं S3, राइट, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की सर्विस है. इसके अलावा अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें, सो द सर्विस रिलेटेड विद कंप्यूटेशन इज़ कॉल्ड EC2 और इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग. इसके अलावा डेटाबेसेस जिस तरह मैंने बताया कि उसमें रिलेशनल भी है RDS, और नॉन रिलेशनल NoSQL जिसे हम कहते हैं डायनामो वो भी है. इसके अलावा इलास्टिक कैशे एक और सर्विस है विच इज़ रिलेटेड विद द डेटाबेसेस. एंड इसके अलावा फॉर कोऑर्डिनेशन दे हैव सर्विसेज लाइक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है या वर्क फ्लो फ्रेमवर्क रिलेटेड है. ऑल दीज आर पेड सर्विसेज. पेड का मतलब है कि पे एस यू को एस यू यूज़, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ यू हैव टू पे फॉर द अमेज़ॉन. सो सर्विसेज पे ही मज़ीद हम बात करते हैं. some of the services they are shown here. If you look at the Amazon Web Services, uh, there is perhaps 4 main places, right? अगर हम जनरल सर्विसेज की बात करें तो 4 areas हैं which are like the main places जहाँ पे आप सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. The first one is the Amazon EC2 environment, right? It will allow you to create virtual machines and populate the virtual machines.
It will allow you to create networks between the virtual machines and then use those virtual machine as a distributed system for whatever purpose you want to use it. यानी कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई अमेज़ोन की सर्विस चाहिए, सो द फेमस ऑप्शन अवेलेबल इज़ EC2, जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सके, उनको जो है वो अप कर सके, पॉपुलेट कर सके, कॉन्फ़िगर कर सके. इसके अलावा इट विल अलाउ यू टू क्रिएट अ नेटवर्क बिटवीन द वर्चुअल मशीन, यानी जिस तरह आप फिजिकल वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह क्लाउड में भी वर्चुअल मशीन्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क. So that is the first service, EC2, related with computing. Second service is related with database, and the Amazon service related with the database is called DynamoDB. That is a flexible service, and that is based on non-SQL database. So जो चीज़ no SQL की कैटेगरी में आएगी, obviously that is very fast and it has other advantages. For example, it will this will allow it to have lots of customer very fast response time and still cope with a huge amount of information. यानी अगर आपके पास डेटाबेस में बिग डेटा स्टोर है और आप नो SQL को यूज़ कर रहे हैं, so the advantage, the plus point is fast response to the customer even if their number is very large. Right? Another service of Amazon, the third one, that is a service that runs code in response to events, event driven जिसे हम कहते हैं, and that is the Lambda, AWS Lambda. And what it would do is it will automatically manage how your system, your virtual machine, respond to the different activities or responds to the different requests from the customers, or it will respond to different queries when you have computer resource failure and other thing, how it will respond to such thing as well, right? So AWS Lambda is, आप कह सकते हैं कि that is an event driven and serverless computing platform जो कि Amazon आपको provide करता है is a part of its AWS. It is basically a computing service that run code in response to event, and it automatically manages the computing resources required by that code. So automation is one of the beauty of AWS Lambda in response to events that occur from time to time, right? And the last one is the Amazon S3, and that is related with storage, large storage, long term storage के लिए अगर आपको सर्विस चाहिए Amazon की, so S3 is the option. It is very scalable and provides a great deal of reliability and tolerance, क्योंकि आपका डेटा जो है वो एक से ज़्यादा लोकेशन पे स्टोर होगा. So reliability is there, tolerance is there, and it can store huge amount of data. ये जो सर्विस है S3, it actually stores the things in terms of object, and you can retrieve the object in order to use them. For example, when you are using the service EC2 from Amazon, you may want some data out of storage. You would go, for example, अगर आप EC2, sorry, which is a service which is related with the computing, अगर आप EC2 की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं and you want some data out of storage, so what would happen? You would go your Amazon S3 to retrieve that storage which is stored in the form of objects, and then you would use it in the EC2. यानी EC2 और S3 को आप आपस में लिंक कर सकते हैं. आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप रिट्रीव कहाँ से करेंगे? You have to retrieve it from the S3, and after processing you have to store it on the S3 again.
So whatever computing you actually want to do, you can do with the EC2, and whatever storage you want to store, you can do it with the S3. और अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस चाहिए, नो SQL, फास्ट प्रोसेसिंग, so Dynamo is there. And if you use automatic responses to the events that occur from time to time, so AWS Lambda is there. So these four are the famous services from AWS that are available to the customer. Okay, जिस तरह मैंने कहा कि these are the pioneers and they have a global presence. So what you see here is that Amazon split up into local regions. These are just a list of them, right? 9 regions हैं, but this information is outdated. Currently, they have more than 20 regions. I will show you कि उनके अभी जो है वो 20 से ज़्यादा regions जो हैं वो available हैं. So there are however Amazon regions. आप देख सकते हैं कि in the United States में भी है. 3 are in the United States. East में एक है and 2 are in the West. There are however Amazon region in the rest of the world as well. So there is one, आप देख सकते हैं कि यूरोप में 2 है, एशिया में 3 है और साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, सão पाउलो में एक जो है उनका रीजन है. So ये regions इतने ज़्यादा क्यों हैं? So they have a set of distributed facilities that they can direct you to. And whenever you sign up for Amazon services, आप जब अपना account बनाते हैं, what you will see that you will be directed. आपको option दिया जाएगा कि आप किस region में अपना account जो है वो खोलने जा रहे हैं. So actually you will be directed to one of these regional areas, and they will be providing your compute for you, so that you benefit from a low latency and high availability in your particular area. What does it mean? कि अगर आप एशिया में रह रहे हैं तो जो करीब तरीन रीजन होगा आपका अकाउंट नॉर्मली वहाँ पे बनाया जाएगा. आप कहीं और भी बना सकते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज, डजेंट मैटर, लेकिन करीब तरीन इसलिए ताकि आपकी जो लेटेंसी है और जो हाई अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके. तो जिस तरह मैंने बताया कि दिस इज़ लाइक एन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन. The actual regions, I will share it with you. Here we go. What you see is the actual regions. You see they are having more than 20 regions throughout the world. São Paulo, Brazil, and also in the 3 in the United States, and then also Europe में भी है. यहाँ पे जो आपको ये जो कलर नज़र आ रहे हैं, they are under construction, not available yet, but soon they will be available. Here we have the closest in India, Mumbai, and they also have in the यहाँ पे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में भी है. सो अगर आप इनको काउंट करें, you will get more than 20 available regions. Okay. इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इंस्टेंसेस की, so different types of instances can be created inside the infrastructure as a service provided by the AWS. So what we mentioned is the EC2. If you dig down into the EC2, what you can do is to create, like अगर आपको computing से related services चाहिए तो उसमें आपके पास different options available हैं. For example, you can create micro instances of a virtual machine. जिस तरह नाम से जाहिर है, they are like sort of small, very lightweight virtual machines. अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए फॉर एग्जांपल या कोई चीज़ चेक करने के लिए आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, सो डेफिनेटली द ऑप्शन दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इज़ द माइक्रो इंस्टेंस ऑफ अ वर्चुअल मशीन that is going to be very small and very lightweight virtual machine. They are still virtual machine but they are small in size and they are lightweight. उनकी memory processing storage जो है वो कम होगी as compared to the other option. So it's a free tier available. आप इसको freely use कर सकते हैं. जिस तरह मैंने start में बताया था कि freely आप check करने के लिए इनकी services को use कर सकते हैं.
टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ नॉट एक्चुअली फ्री, बिकॉज जब आप अकाउंट बनाएंगे फ्री तो वहाँ पे वो आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा, और फिर वो जो है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको वेरीफाई करेगा, उसकी कुछ फ़ी है वो आपसे जो है वो डिटेक्ट होगी एंड सो ऑन. So that is not actually free, but still it is available for student and for faculty members or for researchers free of cost. So जब हम बात करते हैं फ्री टीयर की तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट भी इसको एक्चुअली गेट एक्सेस वो ले सकते हैं टू देयर फॉर देयर यूज़, लाइक जो माइक्रो इंस्टेंसेस ऑफ वर्चुअल मशीन है वो फ्रीली अवेलेबल है इन द फ्री टीयर मॉडल फॉर स्टूडेंट एंड फॉर अदर रिसर्चर्स. इसके अलावा हमारे पास और भी इंस्टेंसेस हैं, लाइक दे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव जनरल पर्पस मशीन. अगर आप इस लिस्ट में देखें तो जनरल पर्पस आर दोस जो कि हमारे पास लार्जर इंस्टेंसेस हैं एंड दे यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ जो लार्ज कंपनीज हैं. अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें तो माइक्रो से उनका काम नहीं चलेगा. दे हैव टू गो फॉर द जनरल पर्पस मशीन because they have memory optimization options, they have storage optimization option, compute optimization option, and if you want you can actually get GPU instances as well, right? So 6 different type of instances है. इसके अलावा और भी है but they are like the most common one. माइक्रो इंस्टेंसेस हैं, इस तरह मैंने बताया कि दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी लाइट वेट वर्चुअल मशीन, नॉर्मली फ्री टीयर मॉडल में अवेलेबल होते हैं. चेक करने के लिए अगर आप AWS की सर्विसेज चेक करना चाह रहे हैं बिफोर यूजिंग देम और बिफोर एक्चुअली बाइंग देम, सो यू विल हैव टू गो फॉर द माइक्रो इंस्टेंसेस. माइक्रो इंस्टेंसेस का एक फ़ायदा ये भी है कि you actually get access to the micro instances and use them for your own personal project. और अगर आपको मल्टीपल माइक्रो इंस्टेंसेस चाहिए, राइट, सो एक्चुअली अगर आपको याद हो मल्टी टेनेंसी का कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे अप्लाई होता है. यानी बहुत सारे माइक्रो इंस्टेंसेस होते हैं जो कि रन कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, बट द ब्यूटी इज़ के AWS वुड मेक इट श्योर कि जो क्लाइंट्स हैं एक क्लाइंट का जो माइक्रो वर्चुअल मशीन है वो किसी दूसरे माइक्रो वर्चुअल मशीन के साथ इंटरफेयर ना करे, इंटरप्ट एक दूसरे के ऑपरेशन को वो ना करे. इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टेनेंसी, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड हेयर. इसके अलावा जनरल पर्पस मशीन भी अवेलेबल है और उसमें फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आप मेमोरी के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए, कंप्यूटिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं. और अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ा सेटअप आपको चाहिए, you have the option of GPU available as well, right? Okay, again, let us talk about Amazon and other competitors which are available in the market. Regarding an estimate which has shown कि typically जो Amazon है इसका जो रेवेन्यू है वो टिपिकली 4 बिलियन से लेकर 5 बिलियन डॉलर तक है, एंड इट वाज इन 2014, एंड आई एम श्योर दैट इज़ मच मोर लार्जर देन द फिगर शोन हियर. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ बीन डबलिंग ओवर अ 2-year पीरियड, राइट? तो अगर 2 years में ये डबल हो रहा है सो आप कैलकुलेट करें कि 2020 में इनका जो रेवेन्यू है वो कितना होगा. सो दिस इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर अमेज़ोन, एंड अमेज़ोन इज़ द टारगेट टू बीट. यानी जो कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं, अजूर या एजर जिसे हम कहते हैं, उनके लिए एक टारगेट है कि वो अमेज़ोन को compete करें. So it's the company to beat. If you are trying to provide infrastructure as a service facility, it provides the main source of competition for everybody else. You have to compete with the Amazon. Its capacity is about 10 times as large as its nearest 145 competitors. Wow, this is something huge. And this statistic has been provided by the Gartner. So again, it is very impressive if you think about the scale of some of these machines and the scale of operations. Even Google जो है, it doesn't threaten Amazon until now.
in the infrastructure as a service provision, right? Because जो Amazon का market है, that is 10 times higher than the 145 competitors currently available. Combined उनसे 145 competitors से combine या अकेले जो है वो Amazon का जो revenue है वो 10% ज़्यादा है, या जो कैपेसिटी है इसकी, सॉरी, वो 10% ज़्यादा है फ्रॉम द कम्पिटिटर्स. अमेज़ॉन की जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन समथिंग विच इज़ कॉल्ड द ज़ेन हाइपरवाइज़र. एंड हाइपरवाइज़र पे हमने बात की थी इन द वर्चुअलाइजेशन लेक्चर. एक्चुअली इट इज़ द ज़ेन जो हाइपरवाइज़र है, दैट इज़ अ प्रोप्राइटरी फॉर्म और वर्जन ऑफ ज़ेन. सो इट्स बीन ज़ेन, आपको पता होगा ये एक समथिंग रिलेटेड विद द यूनिक्स, लेकिन उन्होंने जो है उसको मॉडिफाई किया है टू बी टू वर्क विद द Amazon. So that has been modified internally at Amazon because it is proprietary in order to be more efficient in performance. So Zin hypervisor है, proprietary है, बेस करता है Zin पे, और इसको जो है Amazon में internally जो है वो modify किया गया है in order to be more efficient. Micro instances पे जो हमने बात की, they are often oversubscribed. What does it mean? इसका मतलब है कि उसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो माइक्रो इंस्टेंसेस को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सिस्टम जिस पे अभी हमने बात की इन द लिस्ट. सो द अदर सिस्टम्स एज वी सॉ अर्लियर वर नॉट that much used as compared to the micro instances. One of the reason कि माइक्रो इंस्टेंसेस को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज जो आपकी नीड्स हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं. एंड अनदर रीज़न इसके दे आर समटाइम दे आर फ्रीली अवेलेबल, फ्री कंप्यूटेशन आपको मिल रही है एज लॉन्ग एज यू डोंट माइंड सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ परफॉर्मेंस. बिकॉज यहाँ पे मल्टी टेनेंसी है तो परफॉर्मेंस उसकी इस तरह नहीं होगी जिस तरह पेड सर्विसेज की होती है, राइट? बट स्टिल लोग इसको यूज़ करते हैं. एंड इवन वो गिफ्ट के तौर पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को या स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को माइक्रो इंस्टेंसेस एक्सेस दे देते हैं. तो दैट इज़ वाई ये जो सर्विस है दैट इज़ ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब्ड. सो दोज माइक्रो इंस्टेंसेस आर स्टिल दे आर वेरी वेरी कूल, राइट? इसके अलावा स्टोरेज एंड लोकल एरिया नेटवर्क के जो सर्विसेज हैं दे आर एक्चुअली शेयर्ड. They are multi-tenant as well. So you are sort of losing out if there is lot of customer waiting to use a particular Amazon service. You will notice a performance degradation there as well. But on the other hand, they are trying to provide really efficient and effective designs where the impact of this sharing is not felt too badly, right? What does it mean? कि जो storage आपको provide किया जा रहा है या जो लोकल एरिया नेटवर्क या नेटवर्किंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं दे आर शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, राइट? जिसको हम मल्टी टेनेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं. लेकिन उन्होंने इस तरह के एल्गोरिथम्स लगाए होते हैं, उनके सिस्टम इतने हाईली जो है वो एफिशिएंट होते हैं कि जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है वो आपको उनका इम्पैक्ट जो है वो आप पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, आप उन चीज़ों को जो है वो फील भी नहीं करते. अगर हम बात करें बिलिंग मैकेनिज्म की, सो जस्ट लाइक द अदर प्रोवाइडर्स यू आर गोइंग टू बी बिल्ड बाय द आवर ऑफ द CPU पावर दैट यू आर यूजिंग. एंड देयर इज प्रोविजन फॉर Amazon's machine instances license, राइट? सो इसका मतलब है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लाइसेंसिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करें कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं इन द क्लाउड. तो जो आपके प्रोवाइडर हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोवाइड करें इमेजेस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या जो भी है दैट यू वांट टू यूज़ देम. इस केस में यू डू नॉट नीड टू हैव टू गेट अ सेपरेट लाइसेंस. जिस तरह अगर आप अपने कंप्यूटर पे MS ऑफिस या MS वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू गेट अ प्रॉपर लाइसेंस. पाकिस्तान में नहीं है बट फॉरेन कंट्रीज में यू नीड अ लाइसेंस टू यूज़ इट. लेकिन अगर आप यही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप यूज़ करना चाहें ओवर द क्लाउड सर्विसेज तो उसके लिए आपको सेपरेट से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहें सम अदर प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स
तो वो भी आप लोग कर सकते हैं. Typically you have a lot of choices available in the cloud. उनके पास images होते हैं, already stored images होते हैं for their virtual machines, and what you need to do is you have to choose that image जो आपको चाहिए, जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, आप उसका इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं. जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए आप उसके इमेज को सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं. इस पे अभी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे भी कि किस तरह आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द इमेजेस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल एट द क्लाउड. अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि उनका इमेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? सो लेट मी टेल यू कि फ्लेक्सिबिलिटी है. आप अपना इमेज अपलोड करके वहाँ से फिर उसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट एन इशू. इसके अलावा इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स इट विल अलाउ यू टू बूट द पार्टिकुलर इमेज, और जिस तरह आप लोग अपने सिस्टम पे विंडोज़ को बूट करते हैं और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, इसी तरह वर्चुअल मशीन्स के केस में भी होता है. आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस से इंस्टॉल करते हैं, फिर आप उसको बूट करते हैं और फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइज़र. और जो हाइपरवाइज़र जो अमेज़ोन की जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ द जिन हाइपरवाइज़र, जो इनका प्रोप्राइटरी है. इट्स जस्ट लाइक द VMware जो कि आप लोग जिसके साथ फेमिलियर हैं. स्टोरेज पे अगर हम मज़ीद बात करें तो वेल इट्स लाइक ट्रांजिएंट instant specific storage. So when you start up your virtual machine in the EC2, you get access to storage as part of that, but it's like transient because when your virtual machine is not running, that storage then disappears. It's taken down and moved to the bigger store, that is the S3 store, जहाँ पे that is something related with the storage. There is persistence instance independent elastic block storage. यानी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज ट्रांजेंट स्टोरेज, जहाँ पे जब आपका स्टोरेज आपको चाहिए यू आर यूजिंग इट, ओके, जब आप मशीन जो है वो शट डाउन कर देते हैं, सो द स्टोरेज इज टेकन बैक टू द ह्यूज द बिगर स्टोर, दैट इज़ द S3 स्टोर. इसके अलावा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी है, और जो टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ SSD. नॉर्मली SSD टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करते हैं. और इसके अलावा इंक्रिप्शन ऑप्शंस को भी यूज़ किया जाता है. द ब्लॉक स्टोर कैन बी यूज टू बिल्ड अदर टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स. अगर आपने बनाना है उसके लिए भी आप स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं. वाई दे आर यूजिंग SSD आपको पता होगा, बिकॉज इट रियली डज एक्सेलरेट योर कंप्यूटेशन. यानी इन सिंपल वर्ड्स दे आर फास्ट. डेटा रिट्रीवल वहाँ से फास्ट है. इंक्रिप्शन को ये क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट विल अलाउ यू टू एक्चुअली से टू प्रोवाइड यू अ सिक्योर इन्वायरमेंट ऑन टॉप ऑफ द Amazon और द स्टोरेज. और द इंक्रिप्शन सोल्यूशन आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर डेटा, स्टोर आवर डेटा इन अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म. So it actually provide the encryption mechanism for storage in order to provide safety and security and confidentiality, integrity of data and things like that. Well, on the networking side, they actually provide a virtual private network cloud and also a private routing between virtual private clouds. VPN में क्या होता है कि एक्चुअली देयर आर टनल्स जो कि कनेक्ट करती है आपके एंटरप्राइज को Amazon सर्विसेज के साथ, राइट? टनल का मतलब है कि सिक्योरिटी. There is going to be a connection between only your organization and the Amazon AWS service provider. So you build your own virtual cloud and you connect your VPN tunnel into it. And there are sort of direct connects that allow customer to use
कैरियर बेस्ड वेन्स, इसके अलावा आप वाइड एरिया नेटवर्क को अगर यूज़ करना चाहें फ्रॉम कैरियर्स लाइक AT&T, अगर पाकिस्तान में हम बात करें PTCL वगैरह की, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेट वेन सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने बताया कि AT&T या PTCL अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास हाई बैंडविड्थ कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। यू कैन यूज़ दोज हाई बैंडविड्थ कनेक्शन एज यूर कैरियर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, सो यू कैन गेट डेडिकेटेड लाइन्स फ्रॉम PTCL in order to get Amazon services, and you used to connect to your cloud as well by using these dedicated lines. And there is a big advantage if you are negotiating with these large companies for the carrier access. यानी अगर आप PTCL के साथ मुआहिदा कर ले कि वो आपको dedicated lines देंगी आपकी कंपनी को obviously in order to access your services at the cloud by using VPN, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इन द AWS। वेल, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड we are going to take a virtual tour of creating an account on Amazon Web Services, right? This is going to be like a virtual tour कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो what is the steps, what are the steps, what is the process and how it looks, what are the main screens. Remember, the screen that you see here is outdated. अभी अगर आप Amazon Web Services AWS पे लॉगिन करेंगे तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको नज़र आएगी हो सकता है कि वो इससे डिफरेंट हो। You will also see information related with the coronavirus as well on the main screen of the Amazon. I hope they are offering some, हो सकता है कि वो जिस तरह बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं वो कुछ फ्री चीज़ें भी ऑफ़र कर रही हैं, सो मे बी दे आर ऑफरिंग समथिंग बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। आई एम नॉट श्योर बट यू हैव टू लुक देयर एट द अमेजोन वेबसाइट। सो जो मेन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है जब आप लॉगिन करते हैं टू द अमेजोन, what you will see is going to be like this. It's pretty self-explanatory। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन फुल कॉन्फ्रेंस। सो इनका कोई कॉन्फ्रेंस है एनुअल, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो यहाँ पे मेंशन है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वो भी है। AWS के साथ हाउ यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द AWS सर्विसेज, उसके बारे में ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं। एंड फ्री ट्रायल्स जिस तरह मैंने बताया था कि अवेलेबल है, एक्चुअली दे आर नॉट फ्री बट आप उसको फ्री कह सकते हैं, चलो इनकी बात हम मान लेते हैं, दे आर फ्री। सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अवेलेबल। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फ्रीली इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू विजिट देयर वेबसाइट। Even I think in case of a student you will not need a credit card, right? अगर आप फ्री ट्रायल को यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड नंबर। अगर वो आपको चार्ज नहीं कर रहे तब भी वो आपसे कार्ड नंबर फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेस वो मांगेंगे, सो बी केयरफुल। लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में जो है वो आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं मांगेंगे। अच्छा, जब हम कहते हैं फ्री तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे दे आर गोइंग टू बी लिमिटेड एंड उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ राउंड अबाउट $300। यानी वो आपको $300 चेक नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज वो आपको दे रहे हैं, कंप्यूटेशन पावर या स्टोरेज से रिलेटेड जो सर्विसेज, जो स्पेस आपको वो दे रहे हैं, उनकी अगर आप उनको लेना चाहें पैसों से, सो द कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी लाइक $300 फॉर कंप्यूटेशन एंड ऑल अदर स्टफ। सो यू कैन गो इन देयर any one of these points and start operating and building your own services। यानी आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे जब आप आएंगे what you will see is the list of the services। This is your main screen। It shows you all the different services that Amazon can actually provide। There are actually a huge number of these services and actually they range from enterprise level to mobile services to application services to analysis to storage to computation and to databases to networking and so on। For example, you can see EC2 Lambda जिस पे अभी हमने बात की, S3 which is there something related with the storage database, जो Dynamo या RDS पे हमने बात की, you will see them in the database section। networking जो हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या कंप्यूटिंग की बात की, दैट इज़ देयर। डायरेक्ट कनेक्ट रूट 53 इज़ देयर।
इसके अलावा डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, एनालिटिक्स से रिलेटेड है. सो एक स्लाइड में जो हमने सर्विसेज पे बात की थी, यू विल सी देम somewhere in on this screen. So as you see, there are actually a huge number of these services available at their website. So based on your need, you can select them. Some of them will be infrastructure as a service, some of them are going to be platform as a service. So it's all sort of very straightforward and very well thought out and sought out. So हम जो कहते हैं कि Amazon is the leading company is actually doing this type of interfaces. They have a large number of services available because they are the leader, right? और इसीलिए इसके जो competitors हैं, ये अपने competitors से 10 times more capacity capable हैं because of this the list of the services they're actually providing, right? नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर आप आएंगे अकाउंट बनाते हुए, सो यू विल सी समथिंग रिलेटेड विद द रिसोर्सेज. दिस स्क्रीन इज शोइंग यू द actual resources. It's showing you how many running instances you have, the volumes that you have. That's up here. How many key pairs or security keys that you are using are here. You are using any IP address, elastic IP address, meaning you can have a range of IP addresses and increase them, or you can decrease them, what sort of addresses they are. So this type of information is shown on this screen, यानी जो actual resources आप use कर रहे हैं, right? Instances पे हमने बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई माइक्रो इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी. इसके अलावा आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है. सिक्योरिटी कीज़ जो आप यूज़ करते हैं, पेयर ऑफ कीज़, एक प्राइवेट की होती है एक पब्लिक की, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है. इसके अलावा बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लो बैलेंस. सो लो बैलेंस का मतलब होगा कि you are using what the options are in the load balancer. So when you see this, what you can do is to see the different health of the different systems, right? तो जो resources आप use कर रहे हैं, what is the health level, and you notice under here it lists some of the different zones. Start में हमने zones की बात की थी कि मैंने बताया कि more than 20 zones हैं. तो कौन सा zone है जो आपको अवेलेबल है, या जो आपकी सर्विस जहाँ पे जो है वो डिप्लॉयड है. सो अगर आप यूएस में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई और जोन है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस स्क्रीन एक्चुअली शोज यू द रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट वन इज द actual things start from here. That is the step number 1, right? So the actual things are going to be start from here. This is if you are going to build a new system. यानी अगर आप कोई virtual machine बनाते हैं account बनाने के बाद, what are the steps? So this is the first step. Okay. You can choose your own machine image, or Amazon will provide you AMI, stand for Amazon Machine Images. Remember मैंने बात की थी आपसे कि different operating systems आपको available होंगे. You just need to select the appropriate image from the list and go forward. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Linux के वर्जन्स हैं, Red Hat है, Flavors है, SUSE है, Ubuntu है, और Amazon का अपना Linux का फ्लेवर है. इसके अलावा Windows भी आपको नज़र आ रही है, the edition is server. इसके अलावा लिस्ट में और भी हैं. और अगर आप अपने कोई इमेज, मशीन इमेज जो है वो अपलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट? सो इसके अलावा यहाँ पे 32 बिट के ऑप्शंस भी हैं और 64 बिट के ऑप्शन भी हैं. जिस तरह आप लोग नॉर्मली फिजिकल मशीन पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सेम इज़ द केस हेयर. आपने वर्चुअल मशीन बनाना है, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है या लिनक्स है? अगर लाइनक्स है फॉर एग्जांपल तो कौन सा फ्लेवर, यूबंटू आपको चाहिए, रेड हैट चाहिए, मिंट चाहिए, या कोई और चाहिए. सो लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस AMI आर अवेलेबल एंड यू कैन आल्सो अपलोड योर ओन एज वेल. राइट, here is yet another screen, that is step number 2, instance type. remember यहाँ पे different options हैं. you see जनरल पर्पस की फैमिली है,
और फिर उसमें टाइप्स हैं, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है एंड सो ऑन। सो नॉर्मली फ्री टियर में आपको कौन सा अवेलेबल होता है, माइक्रो ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द जनरल पर्पस फ्रॉम द फैमिली एंड देन द माइक्रो। कितने सीपीयूज, वर्चुअल सीपीयूज आपको चाहिए, कितनी मेमोरी आपको चाहिए, स्टोरेज के लिए कौन सा आपको चाहिए, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ऑन दिस स्क्रीन यू हैव टू सेट योर बिल्डिंग, यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन क्लाउड. So what you would like to do is to see whether you want a big virtual machine or small virtual machine. Free है तो फिर आप obviously you will have to go for the small one because that is only available. Well, here a list of all the virtual machines they provide, and you can see that they have micro, they have large, they have extra large, they have medium sorts of things available there. There are you see there are some dots for selecting uh, which one you want. A number of virtual CPUs do you want per instance. For example, आपको कितने CPUs चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, और up to 8 I think 8 तक आप जा सकते हैं in case of free edition. So you can choose how much memory as well. You notice they are all in the categories. कौन सी category आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं. They are basically whether you want to do a lot of computing or whether you want to do small amount of computing, whether you require a large amount of memory or whether you require small amount of memory, whether you have to pay less or more, whether based on your requirement you decide and then you select from these options as a step number 2. Some of the screens we have omitted. What is important is step number 7, that is actually giving you a review. Why I have skipped the configuration steps, for example, configure instance, add storage, take instance, because these screens are outdated. I will share with you some एक्चुअल स्क्रीन जो कि अगर अभी आप अमेज़ोन पे लॉगिन करते हैं तो जो स्क्रीन आपको नज़र आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ अभी एंड ऑफ द लेक्चर पे शेयर करूंगा. सो दैट इज़ व्हाई आई हैव ओमिटेड सम ऑफ द स्लाइड्स. सो दिस इज एक्चुअली अ रिव्यू कि जब आप सारे प्रोसेस से गुजर जाएं तो एट द एंड यू विल हैव टू रिव्यू व्हाट यू हैव सेलेक्टेड. If you are building a system, you have to go through various steps and then at the end it will show you what you have done till now. So this actually provide you an information about the current state, and then finally it will show you the launch status. जब आपका जो virtual machine है वो up हो जाए, launch हो जाए, तो end पे आपको जो है ये स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी. A little bit of time, इसमें टाइम लगेगा मशीन को अप होने में, इंस्टॉल होने में, वर्किंग कंडीशन आने में, बट यू हैव टू बी पेशेंस एंड देन यू विल सी द स्क्रीन. Right, so this is the actual machine which is running now, or it is going to be in the initialization state. You see the status check there. Okay, the machine is initializing and you will see the IP address there and all the information. Well, here on this last screen you will see the overhead also. The CPU that are being used is shown there. The amount of disk that has been used is shown there, and lots of different things are there. That is more of a summary. You can see lots of details about them. If you do pick that summary, this is what you are getting. So as you can see, the status is running, or the status yes, the status is running. So and you see a little bit of details about where we are. It's like still initializing. As I mentioned, the machine will take some time. Well, the machine is up. It's got a public DNS address as well, a public IP address as well. You got a public IP address. पब्लिक आईपी एड्रेस का क्या मतलब है कि यू कैन नाउ रीच इट फ्रॉम आउटसाइड, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो you have there a sort of step-by-step process of building a virtual machine by using AWS services. So this is a quick overview. Well,
let me share with you the latest. Here we go. These are the steps. जब आप Amazon पे अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है ईमेल एड्रेस. यू नीड अ वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू क्रिएट एन अकाउंट. इसके बाद जो स्क्रीन है उसमें आपसे अगेन कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, यू हैव टू सेलेक्ट अ पासवर्ड, एंड देन जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, फ़ोन नंबर वगैरह. ओके, दिस इज़ द अकाउंट मेकिंग प्रोसीजर फॉर फ्री ट्रायल वर्जन. इसमें आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी पूछी जाएगी. सो दिस इज़ समथिंग विच is not going to happen, but it happens. So the only option that you have is to go for the student version. उसमें 2-3 दिन आपके लगेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में, बट उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड देने की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी नहीं पड़ेगी. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे पेमेंट ऑप्शन मांगेगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेस, राइट. ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ये आपके कार्ड को वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कॉल आएगी, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा. उससे गुजरने के बाद यू विल सी द थिंग्स लाइक दिस. सो व्हाट इज़ हियर इज़ लाइक व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू रिक्वायर्ड. नॉर्मली बेसिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू चेक थिंग्स. अगर आपका कोई डेवलपमेंट का प्लान है, सो अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर डेवलपर्स एंड बिजनेस प्लान. देन आपका अकाउंट जब बन जाए, सो नाउ इट्स टाइम टू मेक अ सिस्टम, राइट. तो सिस्टम बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. कंसोल पे आप आएंगे. ओके, कौन सी सर्विस आपको चाहिए. यू सी EC2 कंप्यूट, कौन सी सर्विस आपको चाहिए. जो लिस्ट हमने देखी थी वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है. सो नॉर्मली हम EC2 को सेलेक्ट करते हैं. वर्चुअल सर्वर और वर्चुअल मशीन इन द क्लाउड हमें चाहिए. ओके, यू सी हेयर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम AMI इमेजेस आपके पास अवेलेबल है. एक लिस्ट होगी यहाँ पे, सिर्फ इसने विंडो को शो किया है बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन विंडोज़. कौन सा जो है वो आपको 64 बिट चाहिए, 32 बिट. सो ही इज़ गोइंग फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद अगेन देयर आर द ऑप्शंस. जनरल पर्पस फैमिली में कौन सा आपको माइक्रो चाहिए. यस, माइक्रो फ्री में हमको माइक्रो चाहिए. स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, वेरी लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, नैनो चाहिए, जो भी है. एंड नंबर ऑफ CPUs आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट स्क्रीन इज अबाउट इंस्टेंसेस, राइट. इंस्टेंसेस पे हमने बात की थी. सो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस करंटली 1 हमें चाहिए. नेटवर्क, सबनेट, IP एड्रेस वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देंगे. एंड देन स्टोरेज, नॉर्मली जो हम सेलेक्ट करते हैं SSD, जिस तरह मैंने बताया कि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, स्पीड इसकी अच्छी, एक्सेलरेटेड ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है. सो यहाँ से आप स्टोरेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट. कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए. एंड देन समथिंग टेग इंस्टेंस इंफॉर्मेशन, लाइक आप उसको नेम वगैरह कोई देते हैं. एंड देन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन. सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर, जिस तरह हमने टनल की बात की थी. सो अनदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच इज़ अवेलेबल, दैट इज़ SSH सिक्योर सॉकेट शेल इज़ अवेलेबल देयर. TCP और जो पोर्ट हम यूज़ करते हैं वो 22 है. एंड देन ये सारे इन्फॉर्मेशन के देने के बाद यू हैव टू रिव्यू. सो स्टेप नंबर 7, रिव्यू. जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की है, दैट इज़ विंडोज सर्वर, इंस्टेंस टाइप, मेमोरी, लॉन्च करो. जैसे ही आप लॉन्च करेंगे, सो आपको जो है सिक्योरिटी के लिए वो जो की पेयर की हमने बात की थी, पब्लिक एंड प्राइवेट की, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस. एंड देन यू हैव टू, अगर आप उस सिस्टम को कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट विद योर इंस्टेंस, जो पब्लिक IP आपको प्रोवाइड की गई है वो, जो यूज़र नेम है आपका और जो पासवर्ड है वो. इसके बाद जो की आपने जनरेट की है वो. एंड देन here we go, remote login connection using VPN
tunnel, and then what you see is like your own window. You see, जिस तरह आप लोग विंडोज़ पे लॉगिन लेते हैं तो आप लोग पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं. सो हियर यू प्रोवाइड द पासवर्ड एंड दिस इज़ द स्क्रीन. यानी अब आप क्लाउड AWS के ऊपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट ट्यूटोरियल. आप इसको देख भी सकते हैं, जो लिंक एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन है अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें. इसके अलावा इसमें मज़ीद भी स्टेप्स हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने इंस्टॉल कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल अदर एप्लीकेशंस. आपको कोई डेटाबेस की सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड कोई सर्विस है, RDS या नो SQL से रिलेटेड कोई सर्विस, कोई डेटाबेस आपको चाहिए, सो डायनामो इज़ देयर, या कोई और DMS वगैरह आपको चाहिए, तो आप यहाँ से बाकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं. किस तरह, वो इस ट्यूटोरियल में वो भी मेंशन है. सो इट वाज अबाउट द फर्स्ट सर्विस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS. इंशाल्लाह सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट Amazon, Microsoft Azure or Azure, and also about the Google. So till then, let us take a short break and we will see you in a moment. Till then, Allah Hafiz.